on that, I am going to declare the result of this after post of President and General Secretary. Based on the counting of ballot papers in the General Conference cum election of APTA at Namsai, Arunachal Pradesh, the following candidate has been found elected to the post of President and General Secretary APTA for the session 2025 to 2028. For the post of President, Bengia Tade sir. And for the post of General Secretary, Purva Dorji File. देखिए, all my colleagues and all the principals from various polytechnic colleges. The last time maybe some of you must still remember that जब हमको elect किया गया था, तभी भी बहुत सारे मेरे problem थे. फिर भी I said that I gave the statement that I'm not bigger than the teaching fraternity of technical education of Arunachal Pradesh. तो घर में कुछ ऐसे होने से भी प्रॉब्लम होने से भी अपना पर्सनल प्रॉब्लम होने से भी मैंने लिया और I believe that I gave my best to the association. कोशिश किया है. तो इस बार तो हम सोच रहे थे एटलीस्ट हमको रिलीफ करने से ठीक है बोल के जिसे भी करके. और सबको मेरे स्पीच में लास्ट में आपने सुना होगा न्यू फेस को लाना चाहिए, न्यू पर्सन्स को लाना चाहिए क्योंकि न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू आइडियाज आपको मिलता है. All my principals and all the officials of DST, so cooperate with us and let us work together for the greater interest of technical education of Arunachal Pradesh. So with this I believe that कि आप लोग हमें next 3 years 10 years में फिर जिस तरह से last 3 years में साथ दिए थे आप लोग फिर साथ देंगे और we will reach to a new heights. Thank you everyone and accept this. Thank you. Good evening, everyone. Today we had a general conference of fourth general conference of our APTA, and as a drafting chairman of the conference discussed so many issues, burning issues, what we are facing as a faculty and as a technical education as a whole, for the betterment only, for the improvement of student enrollment and the betterment of faculty members, staff, and everything. And the entire house felt that we have so many issues and the only one solution is we need to have a separate directorate where we can people from the technical background have to sit, discuss and implement the things strategically. So that is the single point memorandum, single point agenda resolution was selected for this thing. And apart from that, there were many suggestions from the principal sides regarding the low enrollment, and the members have suggested many things like going for voluntarily this thing sensitization instead of waiting for the directorate to say go and do it, and also going for some taking sponsorship from local politicians also, so that the people, the very poor people can also come, and also reduction of fee also some of the members priced. We have listed all those things, and it will be appraised to the next executive body of our APTA, which will be taking up with the higher authority to improve the quality of technical education in the state of Arunachal Pradesh. Thank you for covering us this as a conference. I am Dr. Jitu Saikia, the Chief Election Commissioner of today's conference. We have conducted this election with the help of this paper ballot, and all the different participants from all over the Arunachal, they have come here and participate in the polling process. And after that, we have right now half an hour before we have declared our result, and for the session 2025 to 28, Tade sir, Bengia Tade sir has been elected as the president, and Rupert Dorji File sir has been elected as a general secretary. And this whole process is conducted under the supervision of our election team in a free and fair manner. Thank you. नमस्कार सर, आपको मेधावनी नाव में स्वागत करना चाहती हूँ. आज आप लोग ने यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा है उसके बारे में एक दो बात हमारे जनता को आप बोलना चाहेंगे.
First of all, good evening to all the viewers of Downlit Now. Today we have had 14th General Conference come election of Arunachal Pradesh Technical Teachers Association at Namsai. आज हमारे यहाँ जितने जैसे हमारे यहाँ 6 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, वहाँ से सब डेलीगेट्स आए. वो डेलीगेट्स आर फैकल्टीज टीचिंग फ्रेटर्निटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. तो ये हमारा ट्राई एनुअल प्रोग्राम होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, जो लास्ट टाइम 2022 को हुआ था. दिस टाइम इट इज़ 2025. मार्च को इसका एंडिंग हो रहा था. तो फिर एज पर द बाय लॉ we have to conduct general conference come election on or before the expiry of the term. तो इसके चलते हमारा एकेडमिक सेशंस वगैरह हमारा बहुत सारा एक्टिव होता है. तो फरवरी में हम लोग को थोड़ा समय मिला. सो दिस नोटिफिकेशन वाज ऑलरेडी इशूड इन दिसंबर मंथ 2024. तो आज चल के हम इस चीज़ को सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाया है. और आज हमारे यहाँ डेलीगेट्स सुबह से सब बिजी थे और हमारे यहाँ टेक्निकल सेशंस हुए, हमारे यहाँ डिफरेंट डिलीब्रेशंस हुए और उसके बाद हमारा इलेक्शन हुआ है. तो अभी तक का जितना मतलब अपडेट है आज का इतना ही है. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपदा के बारे में बता देता हूँ. अरुणाचल प्रदेश टेक्निकल टीचर्स एसोसिएशन इज़ एन एसोसिएशन अंडर Directorate of Higher and Technical Education. There is another association which comes under Directorate of Higher and Technical Education, and that is Arunachal Pradesh College Teacher Association. But those association, that association is for general colleges, and our association, that is APTA or Arunachal Pradesh Technical Teacher Association, is for technical institutes like diploma level engineering colleges and degree level engineering college. Although we don't have the degree level engineering colleges now, इसका अभी 2-3 जैसे तोरू में है, उसके बाद और एक है हमारे तेजू में है. तो दोज आर अपकमिंग डिग्री लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस. एंड RGGP है जिसका अपग्रेडेशन डिग्री लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो सकता है अगर गवर्नमेंट हैज़ दी पॉलिटिकल विल. तो अभी इसमें किस कारण से नहीं कर पा रहा, जबकि सब चीज़ हमें हर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, जो फाइनेंशियल कंकरेंस है, देन जितने भी चीज़ जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज को खोलने के लिए ज़रूरी है अपग्रेडेशन के लिए, डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूट टू डिग्री लेवल, वो सब होने के बावजूद भी सरकार इसको अभी तक इसको वो मेटेरियलाइज नहीं कर पाया. तो उस चीज़ को हम लोग फिर से इसको फॉलो अप करेंगे और जो हमारे हायर अथॉरिटीज से, हमारे लेजिस्लेचर से, हमारे मिनिस्टर से, हमारी सरकार है, फिर से उनको इस चीज़ को रियलिटी को बताएंगे और कोशिश करेंगे कि तो राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको भी डिग्री लेवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया जाए. सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा. आपदा का कितना बड़ा रोल है इसमें कि एजुकेशन सेक्टर को वो शिक्षा को आगे बढ़ाने में, इसके बारे में 1-2 लाइन बोलना चाहेंगे सर? थैंक यू डाउनलोड नाउ. बेसिकली हम लोग का जो आपका है अरुणाचल प्रदेश टेक्निकल टीचर्स एसोसिएशन, तो हम लोग ओवरऑल शिक्षा को फोकस नहीं कर. करेंटली हम लोग का फोकस है कि टेक्निकल एजुकेशन को स्टेट में कैसा बढ़ाया जाए. तो सिंस आपको पहले भी आपको आज सुबह से मालूम चल ही रहा होगा, वी हैव ओनली 6 पॉलिटेक्निक एंड वी आर क्लब्ड अंडर द डायरेक्टर ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन. मतलब हमारा सेपरेट डायरेक्टर अभी तक फिलहाल नहीं है. तो उसका वजह से हमारा जो स्टेट में है टेक्निकल एजुकेशन बहुत लैग कर रहा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स. आउट ऑफ 28 स्टेट्स ओनली 3 स्टेट doesn't have separate technical director, that is Arunachal Pradesh and then Tripura and then Mizoram. These 3 states doesn't have separate technical directorate for technical education. तो APTA का रोल इसमें ये है कि all APTA is working for the improvement of technical education in the state by collaborating with the government. उनको सजेशन दे के, जैसे उनको टेक्निकल एजुकेशन का और को एम्फोसाइज करने के लिए हम लोग साइड से हम लोग सजेशन देता है और कोई जगह में प्रेशराइज भी करता है. तो आपका इस तरीक़ा से आपका का क्या रोल क्या हो जाता है कि हम लोग जो भी टेक्निकल एजुकेशन का जो अभी का जो है उससे हम लोग अभी थोड़ा आगे बढ़ रहा है. एंड देन सिंस आपका का रोल का वजह से अभी जो नया टेक्निकल कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस भी आ रहा है एंड वी आर वर्किंग फॉर द सेपरेट डायरेक्टर बेसिकली. तो इस तरह से अगर हमारा सेपरेट डायरेक्टर आ जाएगा तो टेक्निकल एजुकेशन के जो भी इश्यूज अभी तक है वो सब हम लोग बिलीव करते हैं कि मोस्ट ऑफ देम विल बी सॉल्व.
तो हम लोग अपना एक सेपरेट इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएंगे। हम लोग अपना पॉलिसीज़, अपना टेक्निकल रिलेटेड जो भी चीज़ है हम लोग खुद से उसको डिसाइड कर पाएंगे, और हमारा उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो यही रोल है आपका का। सर मेरा और एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि एक लीडर होने के लिए उसका अंदर में क्या क्या क्वालिटीज होना पड़ता है, और जैसे कि आप खुद भी एक लीडर है, आप लोग जब ये आफ्टा में आए हैं क्या क्या चीज आप लोगों को फेस करना मिला? तो लीडर होने के लिए वैसे तो बहुत क्वालिटी है, तो जितना हमको लगता है, सबसे पहले तो एक लीडर, जो भी लीडर है, एक जो पोजीशन होल्ड कर रहे हो, ऑनेस्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड देन ही शुड बी, वो उनको उनका पास पूरा जितना भी नॉलेज है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन, दैट द मिशन एंड विजन ऑफ का, जो एसोसिएशन का मिशन और विजन है वो उनको क्लियर होना चाहिए। एंड ही शुड बी कैपेबल ऑफ, उसका जो जितना भी काम करने का जो कैपेसिटी है वो आउट ऑफ द लिमिटेशंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई टाइम फिक्स होना चाहिए, एनी टाइम एनीवेयर ही और शी शुड बी रेडी टू वर्क फॉर द एसोसिएशन। तो ये सारा कुछ कुछ क्वालिटी है जो कि लीडर में होना चाहिए, जो कि मैं मानता हूँ। सर और एक क्वेश्चन मेरा कि अभी आने वाले दिनों में आफ्ता की तरफ से हम लोग को कुछ अवेयरनेस वीडियो या कुछ प्रोग्राम देखने का मौका मिल सकता है क्या? अपकमिंग प्रोजेक्ट आप लोग का कुछ? जी, देखने सिंस हमने लास्ट टेन्यूर में ही शुरू कर दिया था कि आफ्टा का, कि एवरी टीचर्स डे एवरी ईयर टीचर्स डे को हम लोग एक एसोसिएशन की तरफ से एक सोशल सर्विस करते, वेरियस सेक्टर्स, कभी ब्लड डोनेशन का फॉर्म में, कभी ऑर्फनेज विजिट करने का फॉर्म में, और भी जो भी जहाँ भी हमारा शिक्षा का क्षेत्र में, कई स्कूल में जाना हो, कई कुछ क्लीननेस ड्राइव कैरी करना, वो हमारा ऑलरेडी हम लोगों ने वो चीज़ हम लोग डिसाइड करके रखा है। तो आगे भी जाकर ये टीचर्स डे वाला तो ऑलमोस्ट हमारा एक कैलेंडर इवेंट जैसे तो हो ही गया, और बाकी भी जहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन देने का, हमको जहाँ भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिलेगा, हम लोग ऐसे एसोसिएशन हम लोग हमेशा उसमें स्टैंड करेंगे और हमेशा साथ देंगे।